Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are also preparing pretty well for the upcoming examination like the next CSIR attempt or else the GATE 2026 attempt. So from this video onwards, I am launching the zoology series in which I will be providing videos related to human physiology because this carries a highest weightage in the examination including the ICMR as well, CSIR, GATE, so you cannot skip this portion, and many a times this portion seems difficult, so it needs a insightful lectures to understand the whole physiology of a human being. So for that reason I am providing a series wise lecture. Like in day 1 we will be seeing the communication related thing, how the cells communicate in our body. So after that the second part will be there, and likewise so many parts will be there, so I will request to watch that because all these series are associated with the PYQs as well as new question that can be asked in your different examination. So एक पावर पैक आपको वीडियो रहेगा, यानी कि आपको सब्जेक्टिव भी चीज़ें पूरी पढ़ाई जाएंगी एंड ऑल्सो इट इज़ एसोसिएटेड विद डिफरेंट क्वेश्चंस टू ब्रश अप ऑल योर कॉन्सेप्ट, कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट फर्दर अ डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज दिस मोटिवेट्स मी अ लॉट. सो लेट्स स्टार्ट द चैनल video. So our bodies are made up of approximately 10 trillion, it means 10 to the power 14 cells are there in a human body. So how one cell coordinate with the second cell? So this is a point of concern, that how one cell is coordinated with the second cell and second is third, and like we are having 10 trillion cell, it means 10 to the 14 cells are there in our body. So how they coordinate, how they perform their respective function, and without the control and coordination we will not be able to do any of the physiological thing which we are doing right now. अगर मैं यहाँ पे पढ़ा भी रही हूँ, so many different kind of networking signaling is still going on inside my body. So we cannot say that each cell can survive in isolation, no. So मेन पार्ट क्या है, सेल मस्ट कम्युनिकेट, सेल बिना कम्युनिकेशन के काम नहीं कर सकता है, एंड सो वी नीड to understand the mechanism of communication, how the cell communicates through different kind of messengers, be it a physical contact के through अगर वो करते हैं या फिर कोई chemical secretion वो release करते हैं. So let's start. So our body functions require the communication between cells. As I told you, our body is made up of 10 to the power 14 cells. So each cell is connected with the another cell and they perform the function in a very coordinated way. So how they perform all these function? So even we can compare this with some example. We can understand this with so many examples, like seeing an apple require a communication between the cells in the eyes एंड न्यूरॉन्स इन दी ब्रेन. यानी कि अगर हमें एक एप्पल को भी विजुअलाइज करना है, सो वी नीड द कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ द सेल विच आर प्रेजेंट इन आवर आईज एंड ऑल्सो द न्यूरॉन्स विच इज प्रेजेंट इन आवर ब्रेन. क्योंकि सिर्फ देख के तो हम पता नहीं कर पाएंगे क्या चीज़ें हैं अगर हमारा ब्रेन रिस्पॉन्ड ना करे. And likewise, fighting an infection require communication among several types in the blood. So if we are talking about a person who has low immunity, so you can say कि उसके अंदर बॉडी में रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पा रहा है कि किसी तरह का फॉरेन मटेरियल इनसाइड में आया है, इनकाउंटर हुआ है. सो यू कैन से कि कोऑर्डिनेशन लैकिंग है, जो इम्यून सेल्स है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, देयरफॉर अगर रिकग्निशन नहीं हो पाएगा तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा. एंड ऑल्सो मूविंग योर हैंड रिक्वायर्स कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड दी हैंड मसल सेल्स. ये सारी ही चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती हैं. एंड अगर हम एक और एग्जांपल देखें, मेंटेनिंग अ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल रिक्वायर्स द पैनक्रियाज टू रिलीज केमिकल्स. कौन सा केमिकल्स? इंसुलिन रिलीज होता है. सो वो भी कब रिलीज होना है, कितना रिलीज होना है. और अगर हम डायबिटीज़ पेशेंट्स की बात करते हैं तो उनमें वही जो पैनक्रियाज होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी नहीं होती है, रेजिस्टेंस हो जाता है. सो यू कैन से कि किसी पेशेंट में, अगर हम पेशेंट की बात करें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, तो क्या डिफरेंसेस है सिग्नलिंग में, ये सारी चीज़ें इनसाइट्सफुल आपको पढ़ने की ज़रूरत है. बिकॉज सी सेक्शन में और बी सेक्शन में फैक्चुअल पूछता है, लेकिन सी सेक्शन में आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं. सो इस तरह के हमने मल्टीपल
एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. सो ऑल दी सेल्स इन द बॉडी यूज मैकेनिज्म टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर, जो कि हम देखने वाले हैं. नाउ दो मेजर मैकेनिज्म होते हैं. आवर बॉडी फॉलोज टू मेजर मैकेनिज्म of signaling, you can say, or communication in between huge number of cells in our body. So the first one is through physical connection. It means cells are physically linked by gap junction. And the second one is cells communicate through chemical messengers. यानी दो चीजें हैं, एक तो एक सेल और दो सेल कनेक्टेड हो, एंड इसके अलावा सेकेंड मोड क्या होगा, सेकेंड मोड होगा कुछ केमिकल सिक्रीशंस के थ्रू. हम देखेंगे क्या वो केमिकल सिक्रीशंस हैं, उसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन थ्रू गैप जंक्शन. यानी सबसे पहला मोड हम पढ़ने वाले हैं. दिस विल बी योर फर्स्ट मोड, that is known as direct communication through gap junction. So we know that adjacent cells are the gap junction link adjacent cell, यानी एक सेल दूसरे सेल से लिंक्ड है through the gap junction, that is connexins. So plasma membrane proteins that form structure called connexons. सबसे पहले मैं डायग्राम दिखा देती हूँ. So डायग्राम यहाँ पे है. You can see direct communication through gap junction. यहाँ पे एक सेल है, ये सेल 1 है, ये सेल 2 है. So this is an example of direct communication through the gap junctions. Gap junction की अगर हम लोग बात करें, they are composed of membrane protein structure called connexons that link cytosol of two adjacent cells, allowing ions and small molecules to move between cells. So यहाँ पे देखो, ये जो दिख रहा है, that is the membrane protein which is known as connexons. So जो connexons है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी पूछेगा, ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे दिख रहा है. एंड ये क्या अलाउ करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अलाउ करता है फ्रॉम वन सेल साइटोप्लाज्म टू अनदर. तो इस तरह से ये सेल जो है वो फिजिकली कनेक्टेड है एक दूसरे से, ना कि यहाँ पे ये दोनों सेपरेटेड है, केमिकल मैसेंजर्स रिलीज हो रहे हैं. नो, दीज आर फिजिकली कनेक्टेड थ्रू द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन. और जो गैप जंक्शन है, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन नोन एज कनेक्सॉन्स, जो कि दो साइटोसोल को लिंक करता है. अब ये जो कनेक्सॉन्स है वो किससे बनता है, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्सिन्स. 6 कनेक्सिन्स मिलके एक कनेक्सॉन्स बनाते हैं. एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं. गैप जंक्शंस आर प्राइमरीली फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स. सबसे पहले तो गैप जंक्शंस कौन सा प्रोटीन फॉर्म करते हैं, कैडरीन्स, कनेक्सिन्स, इंटीग्रीन्स, क्लोडीन्स. सो द राइट आंसर इज connexins. Connexins are the gap junction protein which are known to connect the two cell cytoplasm. So connexins क्या है, it assemble into connexons. hemi channels होते हैं which dock with connexons from neighboring cells to form gap junction channels. So ये एक बहुत ही important topic है. Now back to the topic. The movement of ions through gap junction electrically couples the cell such that electrical signal in one cell are directly transmitted to the neighboring cell. जैसे कि मैंने कहा, दो सेल कनेक्टेड हैं किसके थ्रू, कनेक्सिन्स के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू, जिसे हम गैप जंक्शन कहते हैं. तो अगर यहाँ पे इस सेल साइटोप्लाज्म में कुछ एक्टिविटी हो रहा है, तो वो इसके थ्रू इसमें भी ट्रांसफर होगा, डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाए, क्योंकि ये फिजिकली कनेक्टेड है. For example, gap junction found in heart muscle and the smooth muscle of other internal organ, the intestine and blood vessels cause the muscle cell to contract as a unit, that is the cell contract at the same time. यानी हमारी बॉडी में कहीं पे भी कोई भी एक एक्टिविटी होती है, तो it is not an individual activity, it is the coordinated activity of more than one cell, more than one organ, more than one tissues. So ये किस तरह से पॉसिबल है, सेल्स कैसे मैसेज देंगी, जैसे हम मैसेज करने के लिए क्या करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, कॉल यूज़ करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस यूज़ करते हैं, एंड मेनी मोर सच कम्युनिकेशन मोड. सो सेल कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करेंगी, या तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रहेंगी, और अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन में नहीं है, एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, सो इट विल रिलीज सम केमिकल मैसेंजर्स इन द फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स एंड अदर थिंग, उसके थ्रू कनेक्शन होगा. So gap junction are also found in some glands and between some neurons in the brain and retinas where they function in synchronized communication. Synchronized कभी भी कोई चीज़ नहीं होती है, then there arises some disease or discomfort in the individual.
नाउ नेक्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया. वन मोर क्वेश्चन, अ कनेक्सॉन इज फॉर्म्ड बाय द ओलिगोमराइजेशन ऑफ हाउ मेनी कनेक्सिन सब यूनिट्स. ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में. सो अभी जस्ट हमने काउंट किया, अ कनेक्सॉन इज फॉर्म्ड बाय 6 कनेक्सिन सब यूनिट्स. सो द राइट आंसर इज 6. इसको भी नोट डाउन करके रख सकते हैं आप. यू कैन सी यहाँ पे मैंने काउंट करवाया 1 2 3 4 5 6 कनेक्सिन से मिलके बनता है एक कनेक्सॉन. नाउ वन मोर मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज देयर इन आवर बॉडी. यानी ज़रूरी तो नहीं है कि हर सेल एक दूसरे से फिजिकली ही कॉन्टेक्टेड हो. फिजिकल कॉन्टेक्ट के अलावा भी कोई मोड हो सकता है. सो दैट इज नोन एज द इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. यानी अभी हमने पढ़ा कि सेल का जो कम्युनिकेशन होता है सेल टू सेल का, इट कैन बी थ्रू डायरेक्ट communication and also it can be indirect communication through different chemical messengers. So in our body we are having 100 of these chemical messengers with a multitude of functions. यानी सबका अलग अलग फंक्शन है. सो कम्युनिकेशन थ्रू केमिकल मैसेंजर्स अकर व्हेन वन सेल रिलीज करेगा. ऑब्वियसली एक सेल क्या करेगा, कम्युनिकेशन या मैसेज को देगा इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में ऑलरेडी इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो फ्लो होता है ओवरऑल दी बॉडी. सो वो क्या होता है, वहाँ पे रिलीज हो गया. एंड अनदर सेल क्या होगा, टारगेट सेल यानी जिसके लिए मैसेज भेजा गया है वो सेल सेंस करेगा एंड फिर जाके रिस्पॉन्ड करेगा थ्रू अ केमिकल मैसेंजर अगेन. तो इस तरह से कम्युनिकेशन होता है. यानी मुझे मैसेज देना है, मैंने अपना मैसेज दे दिया, तो जिसे मुझे मैसेज देना है मैं उसके नंबर पे मैसेज करूँगी. सो लाइकवाइज हमारे सेल में भी जो भी मैसेज जिस सेल के लिए देना है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं. यानी क्या होता है वहाँ पे, रिसेप्टर्स होते हैं. क्योंकि बॉडी में तो ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, तो अगर सेल 1 ने कुछ मैसेज दिया तो सेल, अगर ये सेल 30 के लिए है तो वो सेल 30th ही सुने और कोई किसी को ना मिले वो मैसेज, तो उसके लिए क्या होता है, वी आर हैविंग रिसेप्टर्स जो सिर्फ सेल 30 के पास ही होंगे. जो इसने रिलीज किया तो सिर्फ ये ही सुन सकता है, ये ही रिसीव कर सकता है, देन this cell will only respond. So the target cell respond to the chemical messenger because it has certain proteins called receptors. हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं एंड इसी के थ्रू काम करते हैं, रिकग्नाइज करेगा फिर जाके रिस्पॉन्स करेगा. सो ये पूरा ही प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन का, दैट इज नोन एज सिग्नल ट्रांसडक्शन. सिग्नल ट्रांसडक्शन कहा जाता है, इसे सिग्नलिंग कहा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे CSIR का, गेट का. सो एक स्ट्रेंथ ऑफ द टारगेट सेल रिस्पॉन्स इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ बाउंड रिसेप्टर्स इंक्रीजेज. अब हमें जितना ज़्यादा हम क्या करेंगे, जितना ज़्यादा हम मैसेजेस रिलीज करेंगे और जितना ज़्यादा रिसेप्टर्स होंगे हमारे रेसिपिएंट सेल के पास, उतना ज़्यादा हमारा स्ट्रेंथ होगा उस मैसेज का. यानी अगर हमारे टारगेट सेल के पास बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं तो जल्दी जल्दी क्या होगा, हमने जो भी मैसेज दिया है वो जाके बाइंड होगा एंड रिस्पॉन्स जनरेट होगा. सो द नंबर ऑफ बाउंड रिसेप्टर डिपेंड्स ऑन बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ मैसेंजर इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिसेप्टर्स ऑन द टारगेट सेल. यानी कि जो भी रिसेप्टर्स कितने हैं, द नंबर ऑफ बाउंड रिसेप्टर टारगेट सेल में कितने हैं, ये डिपेंड करता है कि कितने मैसेजेस आ रहे हैं, कितने कंसंट्रेशन ऑफ मैसेंजर्स हैं हमारे फ्लूइड में एट प्रेजेंट, उसी के अकॉर्डिंग रिसेप्टर्स होते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें एंजाइम्स के लिए, एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम और द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज द केमिकल रिएक्शन रेट. यानी या तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो या एंजाइम का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो तो ओवरऑल रिएक्शन रेट भी इंक्रीज होता है. यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तब बनेगा जब एंजाइम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो, तभी जाके फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. नाउ ये तो अभी हमने एक देखा था, ए मोड क्या था, कम्युनिकेशन विया डायरेक्ट मोड, एंड दिस इज द कम्युनिकेशन वाया केमिकल मैसेंजर. यू कैन सी दिस इज द सेल 1 एंड दिस इज द सेल 2. यानी ये कुछ रिलीज कर रहा है एंड इसके पास ये क्या है, दिस इज द रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है एंड दिस इज द मैसेज है ये, और ये क्या कर रहा है, किसी भी फॉर्म में मैसेज हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, केमिकल इम्पल्स, किसी भी टाइप का, एंड देन इट विल बी सेंस्ड बाय दिस रिसेप्टर ऑफ द सेकेंड सेल. This is known as communication via chemical messengers after a secretory cell release a messenger into the extracellular fluid. तो ये this is all for the day. I hope you liked it. इसका सेकेंड पार्ट में हम देखने वाले हैं केमिकल मैसेंजर के बारे में. केमिकल मैसेंजर क्या होता है एंड कैसे काम करता है, एंड टाइप्स ऑफ केमिकल मैसेंजर्स भी देखेंगे, कहाँ पे क्या क्या हमारे पास में अवेलेबल है. So do watch it and don't forget to subscribe the channel for more such videos.